Just wait 1 minute. Have you seen my screen? Yes or no? Hello? Have you seen this screen, guys? Yes, ma'am. Okay. Yes, today we have seen plan for implementation. Okay. Plan for piloting, testing, and scale up, plan for tracking budget and work plan, plan for risks and adaptable changes. Yesterday, we have seen how we adopt new techniques, how we scale, how we testing our plans. Then, which plan we just give a priority. Okay, because any kind of projects, we need to follow the plan. If your plan is fail, means your deadlines of project is increase and you are not completing your plan or your project on time. So plan for tracking budget and work plan. After that, we plan for tracking budget. We just process to go through the budget. Okay, wait a minute. Give me a 1 second. Huh? Sorry. So this is the adaptable changes. Then plan for risks and adaptable changes. We need to take a risk to complete, to fulfill the project, and for that we need to take a risk. We need to work day night. We need to follow the rules and try to complete our plan on time. If you feel like that ki your work is not completed, okay, 2 years is finished and your work is not completed, so if you feel like that some kind of changes made to the process of working, so you will do it and complete your work, finished your project on time. Okay, so whatever the changes, whatever the risks you would like to adapt to complete their project, it's applicable because of time limit, right? Yes, plan for monitoring and evaluation. Now, how we monitoring the plan, how we evaluations the plan, on what basis we need to evaluate the project plan, people, everything, teamwork, management. Okay, so done on the basis of sets target. देखिए यहाँ पे भी वही बोला है कि आपको टारगेट सेट करना है. If you don't have a target, you never fulfill your wish, you never complete your dream, you never complete your work. So every organizations, every management, every corporate, what do after get their project? It's a target, set a target. और ये टारगेट तभी कंप्लीट होता है गाइस जब हमारे पास अच्छा स्टाफ हो, एफिशिएंट पीपल हो, है ना. मैं हमेशा एक एग्जांपल्स रिपीट करती हूँ कि हाँ, आप बच्चे लोग पढ़ते हो क्लास में, है ना. काफी सारे बच्चे होते हैं, सभी लोग एक साथ बैठते हैं, एक ही टीचर होता है जो सबको गाइड करता है, सबको पढ़ाता है, बट ओनली सिंगल वन पर्सन हैव और कम इन मैरिट. अब ऐसा तो नहीं वो गॉड गिफ्टेड होगा, वो भी वही पढ़ता है जो हम पढ़ाते हैं, बट ही इज सेट हर टारगेट, ही इज हर टारगेट कि नो, मुझे मेरिट आना है, मुझे कंप्लीट करना है, एंड ओनली फोकस ऑन दिस टारगेट.
right? So same thing, same plan applicable everywhere. कुछ चीज को पाना है या कुछ चीज को फुलफिल करना है, कुछ अचीव करना है, तो टारगेट इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो डन ऑन द बेसिस ऑफ सेट टारगेट्स, इंडिकेटर्स, इंडिकेट, हाईलाइट करना है कि आज एक वीक है, अगले संडे तक हो जाना चाहिए, 5 डेज में हो जाना चाहिए। और द वर्किंग के स्टाइल से जो स्पेशली जो वर्किंग पीपल होते हैं, जो एक्सपीरियंस पीपल होते हैं, दे नो कि ये जो काम है वो 5 दिन में हो सकता है या फिर एक दिन में भी हो सकता है। दे नो, दे हैव एन आइडिया हाउ टू फुलफिल द टास्क, दे नो द प्रोसेस, दे नो द स्टेप्स टू कंप्लीट द वर्क। एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करनी है ना? जैसे जो मेरिट्स आते हैं स्टूडेंट जो काफी ब्रिलियंट होते हैं, आप उनका देखिए, उनका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होता है, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, उनका सिस्टमैटिक वर्क होता है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट विदाउट मिस्टेक्स। उसी के लिए वो मेरिट आते हैं, बिकॉज सिर्फ एग्जामिनर्स आपका पेपर कैसा लिखा वो नहीं देखता है ना, आपका क्वालिटी कैसा है, आपका स्टैंडर्ड कैसा है, आप लिखते कैसे है, आपकी हैंडराइटिंग्स कैसी है ना? ये सारी चीजें तो they already make their him or herself very particular, very standard. So organization में भी same है, without mistake, quality of work, no repetition of work, got it? So that is the most important of monitoring. और इसे मॉनिटरिंग करने वाले भी होते हैं आपके गाइज, आपके एचओडीज, आपके सब वो चेक करेंगे बार बार, है ना, कि yes it's correct, it's perfect, it's not perfect, it's done, it's not done, a lot of things. Okay, so then PRTCM for tracking the project, they have a software, they have a quality of machines, and they track your tracking the project. वो देखते हैं सारी जगह। देखिए आप आजकल मैक्सिमम ऑफिसेस में सीसीटीवीज लगे होते हैं कि हम लोग डिसिप्लिन है कि नहीं, कौन कितने बजे आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, कौन, बहुत सारे लोग होते हैं कि ऑफिशियल काम में पर्सनल काम करते हैं, तो एवरीथिंग मीन्स मैनेजमेंट यू ट्रैकिंग यू कि वाकई में जो टारगेट है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, कितने बजे लोग आते हैं, कितने बजे स्टार्ट करते हैं, हाउ कितने बजे काम कंप्लीट होता है, ऑल। So that is also important. Now LFA for tracking achievements, and इन सबका मीनिंग हम बाद में देखेंगे। ओके, सो LFA for tracking achievement and progress. रोज आपका शीट्स, आपका वर्किंग प्रोग्रेस जाएगा, बुक्स में एंट्री होगा, सॉफ्टवेयर में एंट्री होगा, तो डेफिनेटली आपको प्रोग्रेस, आपको रिपोर्ट मिलेगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, है ना, कि ये वीक में हमारा बजट था 15 लाख का, 15 लाख में से कितना वर्क डन हुआ है, कितना फिनिश्ड है, कितना अनफिनिश है, कितना फर्निश है, कितना अनफर्निश है, एवरीथिंग। बट tracking is important, everything, just maintain your books, your recordings in your books, word documents, in all files, complete. Okay, now evaluation questions, evaluation targets, evaluation methods, and time, everything you should evaluate. Questions, if work is not finished, the questions comes to your mind ki when is come, how it will be completed, what time we have to prefer. Okay, so that kind of question comes in your mind. Evaluation targets, you feel like that कि अरे आज तो मंडे मतलब फ्राइडे है और मैंने डिसाइड किया था कि संडे कंप्लीट करना है और मैंने तो इसे स्टार्ट भी नहीं किया, मैं कब इसको टाइम दूं? सो इवैल्यूएट योरसेल्फ, टाइम निकालिए, हाफ एन आवर, 1 आवर, एंड जस्ट कंप्लीट इट। इवैल्यूएशन मेथड्स, न्यू ट्रेनिंग्स, न्यू टेक्निक्स, मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है, एवरीथिंग, तब जाके आपका प्लान, तब जाके आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट, प्रपोजल डेवलपमेंट, नए नए प्रपोजल्स आएंगे, नए नए उसी रिगार्डिंग प्रोजेक्ट को, क्योंकि प्रोजेक्ट तो काफी बड़ा होता है ना, बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, तो एक काम हो गया तो आपको नया प्रपोजल्स मिल सकता है कि नहीं भाई ये नहीं ये करो। सो प्रपोजल्स में भी एडजस्टमेंट इन ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड अदर फैक्टर्स, सारी चीजों को रखना है, ऑब्जेक्टिव्स रखना है कि आज का ये कंप्लीट करना है, कल का ये कंप्लीट करना है, व्हाटएवर। प्रपोजल आउटलाइन, आपको प्रपोजल्स की आउटलाइन देनी है। जैसे अगर आपके टीम ने बोल दिया कि ये वीक में आपका ये काम हो जाना चाहिए, लीडर्स ने या मैनेजर ने या प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोल दिया, वर्कर को तो स्पेसिफिक काम होता है कि ये एक दिन में कंप्लीट करना ही है,
तो वो प्रपोजल्स होते हैं और ये कंप्लीट करने के लिए उनके पास अच्छा मैन पावर भी होना चाहिए. समटाइम्स इट्स हैपन कि कुछ हो जाए तो वो नहीं होता है, बट वो रिकवरी करना होता है. ठीक है ना. सो प्रपोजल की आउटलाइन बनानी पड़ती है कि कब कहाँ कौन क्या क्या कैसे कैसे काम करेगा. ओके, किस किस को क्या क्या असाइनमेंट देना है, और वो बंदा वो असाइन टाइम पे कर रहा है कि नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम है क्या, उसे ट्रेनिंग देना पड़ेगा क्या, एवरीथिंग वो सब दिखना पड़ता है. राइटिंग ऑफ प्रपोजल्स, जो भी आपका वर्क कंप्लीट हो रहा है उसको आप राइटिंग करना होता है कि ये डिपार्टमेंट से ये कंप्लीट हो गया, डन, ये डिपार्टमेंट से ये कंप्लीट हो गया, डन, एंड ऑल शीट्स दे मेंटेन एंड दे रिपोर्टेड ऑन फाइल, प्रपोजल्स फाइल. ओके, सो एवरी डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रपोजल होगा. सबमिशन टू कंसर्न अथॉरिटी फॉर अप्रूवल, जो भी आपने प्लान सेट किए हैं, टारगेट्स बनाए हैं नेक्स्ट वीक के लिए या नेक्स्ट मंथ के लिए, तो उसको आपको अप्रूवल लेना है जो भी आपकी अथॉरिटी है. ठीक है, एंड आफ्टर दैट आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं. गॉट इट? एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? No, ma'am. Now, planning is expanding of concepts. Lot of concepts, expanding of concepts, and refinement of ideas. Lot of ideas comes in your mind. Relevance of planning, right? Selecting the importance, problem, and appropriate strategy. Lot of strategies we need to follow. Lot of planning we need to follow. Standard of quality. प्रोजेक्ट का ये होता है, रूल्स होते हैं, आप सारे रूल्स एथिक्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. ठीक है, सो ये सारी चीजें उसमें, मतलब प्रोजेक्ट जब आप स्टार्ट करते हो, डेली जो आप वर्क करते हो उस रिगार्डिंग, मतलब मैनेजर के लिए भी बहुत इजी नहीं होता है प्रोजेक्ट को हैंडल करना. अगर उसके पास अच्छा टीम वर्क नहीं होगा, तो आपको इसलिए बोलती हूँ कि अच्छे एफिशिएंट पीपल बनिए, कि आपको सारी चीजों को इजीली हैंडल करना आना चाहिए, इजीली प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए. सो प्लानिंग इज एक्सपेंडिंग ऑफ कंसेप्ट एंड रिफाइनमेंट ऑफ आइडियाज. रिलेवेंस ऑफ प्लानिंग, इट मीन्स लाइक दैट कि आपको प्लानिंग करते वक्त, जब भी, जैसे हमने कल देखा था कि प्लानिंग करते वक्त हमें क्या क्या चीजों को कंसीडर करना है. सबसे पहला तो आपको प्रोजेक्ट का स्टडी करना है. जस्ट स्टडी करने के बाद जब भी आप उसको नोट डाउन करेंगे, वॉट एवर द आइडियाज कम्स इन योर माइंड रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, व्हाट हैपेंड एंड व्हाट विल बी हैपेंड. सो on that basis you just clear your concept कि last project में ये strategy use की थी. You are a expert, and companies and management give you an authority to think more, to share your ideas, to share your thoughts with them, so they will complete their projects on time. When you are sitting in meeting, so that time management asks everyone any suggestions, any ideas, so that time you प्रोसेस. बट कब आप ये प्रोसेस कर पाएंगे? जब आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, जब आपको लग रहा है कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा है और उसमें ये अगर हम यूज करते हैं, ये शीट अगर हम मेंटेन करते हैं एक्सेल्स की, या ये रिपोर्ट्स हम डेली बताएंगे, तो हमारा काम इजी होगा. इफ एवरीवन शुड submit their report on time before went to office, yeah, before go to office, so definitely all work fulfill in time. And also the data operator or accounts people, if they are feeding regular data, cash entry, sales entry, bank entry, every transactions on time, definitely your work is completed every time. आपको पता है SAP में इतना वास्ट है, और रियली मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको एसएपी सीखना है तो अपना एडवांस एक्सेल स्ट्रॉन्ग करिए. एडवांस एक्सेल मस्ट है. बहुत सारे फॉर्मूलेज, ईच एंड एवरीथिंग. मैंने आपको ये भी बताया कि आप एक बनाइए, फॉर्मेट बनाइए एक्सेल्स में. इतने सारे फॉर्मेट्स हमने देखे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फर्स्ट यूनिट्स में. इस वे से अगर आप काम करोगे ना, तो डेफिनेटली विद इन 1 or 2 years यू बिकम अ मैनेजर. यू हैंडलिंग लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ गुड वर्क, बिकॉज ऑफ good standard of quality work, because of no mistakes of work, because of you have a good idea. क्योंकि जब आपके पास टाइम होता है तो डेफिनेटली आपके पास आइडियाज होते हैं. जब आपका काम अप्रिशिएबल होता है, मैनेजमेंट अप्रिशिएट करता है, तो डेफिनेटली यू मोटिवेट एंड यू थिंक more and more. You share your ideas, you share your thoughts, what mistakes you did last record, so you learn like that ki never did any kind of mistakes or next project.
ओके, सो प्लानिंग इज एक्सपांडिंग, बढ़ाओ, थिंक करो, सोचो, क्योंकि ऑल ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें यही लगता है कि यू आर एफिशिएंट पीपल, यू हैव एमबीए ग्रेजुएट, एमबीए पीजी और फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस पर्सन, सो they expect from you because they hire you, they pay you. If they hire you and you don't work or you don't understand what is the actually work, so after 10 साल के बाद ही आप उसी जगह पे काम करोगे जहां आपने ज्वाइन किया था. So increase your efficiency, motivate yourself, do something new, try to understand what actually happened. So Excel is the most important. And again telling you, Excel के courses करिए. And मैंने बताया था NPTEL में है free of cost में. Then आपका advanced financial management या अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस है, जीएसटी का है, टैक्स का है, लीगल एथिक्स वाला है. तो ऐसे भी कोर्सेस आप एक्स्ट्रा करिए जिससे आपका प्रोफाइल क्या हो, हाईलाइट हो और आपको अच्छी कंपनी में अबव 30-40 का जॉब मिले स्टार्टिंग. ओके, सो एक बार आपको थोड़ा तो एफर्ट लेना है बच्चों, थोड़ा सा. 1 महीना आप मत सोइए ना. अभी इस उम्र में अगर आप सोएंगे तो काम कब करेंगे? दिस इज द एज यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट न्यू थिंग्स, लर्न न्यू थिंग्स. 1 महीना करना है. एक बार आपको आदत पड़ गई ना उस काम की, तो आप अपनी स्पीड खुद ब खुद बढ़ा लोगे, खुद ब खुद आपको आने लगेगा. लेकिन डू योरसेल्फ, राइट? डू योरसेल्फ. हमारी मम्मी हमेशा बोलती है कि जैसे वो काफी स्पिरिचुअल है, बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत मतलब गॉड का बहुत है उसको. तो वो हमेशा मुझे बोलती है कि देखो, अगर तुम मेहनत करोगी तो देने वाला है, वो डेफिनेटली तुम्हें देगा. लेकिन हार्ड वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप बोलोगे कि नहीं मैं करूंगा नहीं, सिर्फ सो के रहूंगा, भगवान दे देगा, ऐसा कभी नहीं होगा. सो वर्क. और मैंने अपने लाइफ से यही सीखा है कि लाइफ में मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया है, व्हेन आई वाज 17 इयर्स ओल्ड, तब से मैंने सीखा ही है. यस, डोंट वरी, मिस्टेक होती है, हो जाने दो. तब से मैंने सीखा ही है. मैं कभी मतलब रिग्रेट फील नहीं हुआ मुझे कि मैंने गलत किया तो मुझे बॉस डांटेंगे. नहीं, ठीक है, सॉरी सर, जस्ट से सॉरी एंड स्टार्ट योर न्यू वे. स्टार्ट, बिकॉज लर्निंग नेवर एंडिंग गाइज. डोंट शो योर ईगो, डोंट शो कि नहीं मुझे ईगो है, मुझे सॉरी नहीं बोल सकता मैं, बिकॉज नहीं नहीं नहीं, ऐसे रहोगे तो कभी आगे नहीं जाओगे. लेकिन करना होगा, मेहनत करोगे तो मिलता ही है. आई एम श्योर कि मिलता ही है. वॉट एवर इन माई अभी तक की जर्नी में, मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बताती हूँ कि जिस जिस काम में मैंने इंटरेस्ट लिया है ना, ऑल फुलफिल वेरी वेल. तो आप भी कर सकते हो. जब मैं कर सकती हूँ तो व्हाई यू नॉट? बट शो योर इंटरेस्ट. क्योंकि अभी जो सिस्टम आया है, डिजिटाइजेशन, और अभी इस पैंडेमिक की वजह से जो हम पीछे गए हैं, तो वो बैकलॉग आपको निकालना है ना. उसी मतलब जो इकोनॉमी हमारी डाउन हुई है बिकॉज ऑफ, ऐसे बोलते हैं, तो उसे रिकवर करना है. आपको भी अच्छे जॉब मिलने चाहिए, बिकॉज अभी आपका 3rd है, अभी 4th जाएंगे, तो अभी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ओनली 3 months. यू जस्ट ऐसा सोचिए कि ये 3 महीने सिर्फ मुझे मेहनत ही करना है, मुझे सब सीखना है, सारे अकाउंट्स का नॉलेज लेना है, बिकॉज आई इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, क्योंकि वहां पे तो कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे. सिर्फ 3 महीने, 3 से 6 महीने आपको, मतलब जो ऑलरेडी पॉलिश्ड है, जिनका फ्लुएंसी अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, एक्सेल अच्छा है, एवरीथिंग अच्छा है, तो उन्हें तकलीफ नहीं है. बट जिनका कुछ भी नहीं है, दे जस्ट स्टार्ट न्यू. सो लर्न न्यू थिंग, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मोटिवेट योरसेल्फ. क्यों नहीं आता है मुझे? मुझे आना ही चाहिए. ऐसे कैसे नहीं आता है? पुश करिए खुद को. कुछ भी चीज, मतलब मैं आपको बताती हूँ, ऐसा है ही नहीं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. आपका एफर्ट है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. प्लानिंग के साथ चलो, आइडियाज बनाओ, थॉट्स क्रिएट करो, और विदाउट मिस्टेक फॉलो करो. कि नहीं, डेडलाइन को फॉलो करो. आज 4 बजे यानी 4 बजे मॉर्निंग में उठ के इसे पढ़ना ही है. ये इंटरव्यू का प्रिपरेशन मुझे करना ही है. लिसनिंग, कम्युनिकेटिंग, ओनली 1 hour जिनका कम्युनिकेशन वीक है, बट करोगे तो मिलेगा.
आई एम श्योर मिलता ही है, राइट? So planning, everywhere planning is important, and without planning we don't do anything. Okay, so relevance of planning, then selecting the important problem and appropriate strategy. जब आप कोई भी वर्क स्टार्ट करते हो, है ना, जब आप कोई भी वर्क स्टार्ट करते हो तो व्हाट वी डू, क्या होता है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं स्टार्टिंग्स में, है ना, और हम लोग उस प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि जब आपने प्रोजेक्ट बनाया था या उसका जो फॉर्मेट बनाया था तो तब आपको ऐसा नहीं लगा था कि इसमें इतना सारा प्रॉब्लम्स होगा, है ना. यू नेवर थिंक लाइक दैट कि मतलब कि शुरू में ही ये स्टार्ट हो जाएगा, इसकी ये बिलिंग नहीं होगी, या फिर प्रिंट में बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं. तो पहले तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर रेगुलर आएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका काम टाइम पे नहीं होगा, आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, है ना. Therefore, selecting the important problem and appropriate strategy means कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. लॉट ऑफ स्ट्रेटेजीज इज हियर. अभी आपका अगर टाइमिंग, फॉर एग्जांपल, मतलब हमें कैसी स्ट्रेटेजी यूज करनी है मैं बताती हूँ. जैसे एज एन अकाउंट ऑफिसर, एज एन फाइनेंस ऑफिसर, यू ज्वाइन एनी कंपनी. ओके, उन्होंने बोल दिया कि आपने कंपनी ज्वाइन कर ली और अभी आपका टाइमिंग उन्होंने सेट कर दिया कि आपका टाइमिंग है 10 से 6. ठीक है, अगर आप पास में रहते हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में लगता है तो डेफिनेटली आपको रूल फॉलो करना है. 8 बजे तैयार होकर निकलना है, तब जाके आप पंचिंग टाइम पे करोगे, क्योंकि रूल्स है. वर्क को ऑन टाइम स्टार्ट करना है, ऑन टाइम फिनिश करना है, बट सेम टाइम ऐसा नहीं होता. स्टार्टिंग तो टाइम पे हो जाता है बट एंडिंग कभी कंप्लीट नहीं होता. तो डिसिप्लिन, द गुड स्ट्रेटजी इन लाइफ. कितने भी मोटिवेशंस पढ़ लो आप, बुद्ध जी के पढ़ लो, अपने एपीजे अब्दुल कलाम के पढ़ लो, जितने भी मोटिवेटर्स हैं उनका पढ़ लो, वो यही बोलते हैं कि डिसिप्लिन, इफ यू फॉलो डिसिप्लिन यू फुलफिल ऑल स्ट्रेटेजी इन योर लाइफ, because keep practicing, you make perfect, and your speed is going on and you take any kind of decisions within a minute. You never did any kind of mistakes. Follow the rules. If you feel stress, you just pay yourself an hour every day, 5 minutes to 10 minutes only, meditate yourself. You are every day, if you meditate, definitely you feel energetic, and if you are energetic, you fulfill your tasks and finish your tasks before time. I challenge. But for that, you need to free of stress, new plannings, new targets, new goals, right? So you just follow the strategy. So lot of motivators say कि स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, डिसिप्लिन. अभी इसमें एक ऐसा होता है कि चलो अभी बहुत सारे बंदे जो होते हैं, मतलब जिनको वाकई में जल्दी जो हाई पोस्ट पे जाते हैं, उनका मैंने देखा है कि जैसे अगर कंपनी ने उन्हें बोल दिया कि भाई 10 बजे आओ, तो वो आते हैं आधे घंटा पहले ही आएंगे या 1 घंटा पहले ही आएंगे. एंड दे विल स्टार्ट देयर प्लानिंग. दे विल स्टार्ट कि अरे 1 घंटे पहले आ गया, आज का क्या प्लान है. दे डिसाइड कि आज क्या क्या करना है, कोई मेरा पेंडिंग काम तो नहीं है, अच्छा नहीं है. फिर चलो वो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि अभी 10 बजे मैं स्टार्ट करूंगा, या आधे घंटे पहले भी मैंने वर्क स्टार्ट किया तो मुझे जल्दी जाने को मिलेगा, है ना, प्लानिंग के साथ. अरे इसको मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये काम को क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं किससे डिस्कस करूँ. अच्छा ठीक है, ये बंदे से मैं डिस्कस करूंगा, ये मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँ. सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, आज ये काम कंप्लीट होगा कि नहीं. फोकस, कॉन्सेंट्रेट. यस आई वांट टू कंप्लीट इट, यस आई वांट टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी. नेवर ब्रेक रूल. टाइम पे सारी चीजें, पानी टाइम पे पीना है, टी कॉफी टाइम पे पीना है, खाना भी टाइम पे खाना है, लंच भी टाइम पे लेना है. सो कीप प्रैक्टिसिंग. आफ्टर विद इन 1 or 2 years यू फॉलो द रूल्स. उसके बाद आपको जल्दी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टाइम पे ही आएंगे और टाइम के पहले ही जाएंगे, क्योंकि यू फुलफिल योर वर्क, आपका काम खत्म हो गया है. बट फॉर दैट यू follow the rules.
स्ट्रेटजीज। आई नो एवरीवन इज वर्किंग। अभी अपने SIP प्रोजेक्ट का ही ले लो, उस दिन मीटिंग हुई, सर ने बोला था सैटरडे आके दिखाओ, कोई भी नहीं आया, सिर्फ 1-2 लोग ही आए, बिकॉज यू डोंट फॉलो स्ट्रेटेजी। मुझे पता है, सारी चीजें पता है, यस यू आर वर्किंग, यू डोंट हैव टाइम, बट टाइम तो निकालना पड़ेगा, राइट? एक सेकेंड। यस, टाइम तो मैनेज करना ही है, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते कि टाइम नहीं है, करना पड़ेगा मैनेज। अगर यही प्रैक्टिस रही, यही स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे तो प्री डिटरमाइंस अप्रोप्रिएट स्कोप एंड क्वालिटी, है ना? प्री डिटरमाइंस, जो भी आपने प्री प्लान किए हैं वो सारे वर्क आपके प्लान से हो जाएंगे। जैसे आप जो लोग वर्किंग में हैं, जो लोग MBA प्लस वर्किंग कर रहे हैं, तो उनकी भी स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो करा। 2 आवर्स, ओनली 2 आवर्स यू आर स्टडिंग, कि मैं रोज 2 घंटा तो पढ़ूंगा ही, बस कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, बॉस डांटे कुछ भी, लेकिन 2 घंटा तो मैं पढ़ूंगा ही। 4 से 6 मैं पढ़ाई करूंगा, उसके बाद में ऑफिस का देखूंगा। लेक्चर्स है, लेक्चर्स भी अटेंड करूंगा, एटलीस्ट लिसनिंग ना, वॉट एवर वो क्या बता रहे हैं, राइट? सो डिटरमाइंस एप्रोप्रिएट स्कोप्स। अगर आपका प्रैक्टिस होगा तो स्कोप अच्छा रहेगा, स्कोप अच्छा रहेगा तो आप क्वालिटी वर्क करोगे, है ना? क्वालिटी वर्क करके आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपका वर्क टाइम पे फुलफिल होगा। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस एंड वेज टू मोबिलाइज देम। आइडेंटिफाई करना है मोस्ट ऑफ रिसोर्सेस, ओके, वॉट एवर द रिसोर्सेस अवेलेबल, जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, तो उसी को आइडेंटिफाई करिए कि ये इससे काम होगा क्या, टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, ये बंदे से सॉल्व होगा क्या, नहीं है तो कहीं से लाओ, बट सॉर्ट आउट करो। सो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस एंड वे टू मोबिलाइज देम। उस पर टाइम दो, उसको प्रायोरिटी दो, एंड उसी वर्क को ऑन टाइम फुलफिल करने की कोशिश करिए, राइट? सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने कितने लोगों ने PPTs बनाई है? मैंने बोला था, कल मैंने दिखाया भी था, हाउ वी मेक PPTs इन योर SIP प्रोजेक्ट। मेरे पास सिर्फ यस कुछ ही लोगों के आए हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग में yes, helps in implementation evaluation process। ये रेगुलर अगर आप करते हैं तो इससे क्या मिलती है, आपको हेल्प मिलती है कि एवरी जो भी आप काम कर रहे हो उसे आप खुद जज करो, कहाँ मिस्टेक्स हुई है खुद देखो, एंड अपने आप को इवेल्युएट करो, ठीक है? सो टीम वर्क जो होता है वो क्या होगा, इससे प्रोजेक्ट में आपका इवैल्यूएशन अच्छा दिखेगा, प्रोसेस अच्छा दिखेगा, टीम का परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा, टीम का अच्छा दिखेगा तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑन टाइम कंप्लीट होगा। डेवलप, जैसे एवरीडे आपको डेवलप करना है प्लान्स को, कि कैसे प्लानिंग करना है एवरीडे बिफोर you just reach office before time and planning what is the work। yes, sometimes it's happen कि आपको वर्कलोड होगा तो उसे फुलफिल करना है। सो जस्ट, और अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि भाई टाइम पे नहीं जाना चाहिए या टाइम पे ही जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए। अपने यहाँ लेट कमर्स ज्यादा है, बहुत लोग जो है वो डिसिप्लिन में रह के ही टाइम पे पहुंचते हैं, लेकिन लेट कमर्स रहते हैं। सो दैट इज तो मेथड वी हैव टू यूज। उसमें कभी कभी आपको ना जैसे आपने एक हाथ शीट बना ली है ना, और उसमें जो बजट का फिगर है वो थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है, मतलब आपका एक्सपेंसेस ज्यादा जा रहा है, या फिर आपका जो बजट है वो ज्यादा हाई हो रहा है, तो उसे भी सर्च करना है कि क्यों हाई हो रहा है, कौन सी चीज है जिसको आपने परचेस कर ली, है ना, क्या है। तो आपका प्रोजेक्ट टाइम और
कॉस्ट मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर नई चीजें आपको चाहिए तो उसके लिए आपको टाइम भी लगेगा, इमीडिएटली तो आने से वीक लग सकता है। तो वीक तक हम आपको वर्कर को कौन से काम में उलझा के रखना है, कौन सा काम उनसे करवाना है, ताकि वो नेक्स्ट वर्क के लिए उतने ही एफिशिएंट के साथ काम कर सके। ठीक है, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन प्रोजेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। दिस इज द प्रोजेक्ट प्लानिंग and some kind of evaluation, some kind of estimations of projects you need to prepare with the time and cost. You just develop your budget, ओके, एवरी डे बाय डे। चलो ये वीक का ऐसा था तो नेक्स्ट वीक में आप पहले ही मैनेजर को, एचओडी को इन्फॉर्म करो कि नहीं सर ये वीक में हमारा खर्चा ज्यादा हो गया है, नेक्स्ट वीक में इतने होगा नहीं, जस्ट इंक्रीज द अमाउंट। Okay, so that kind of suggestions you have to put it in your, then some kind of ये सारी कॉस्ट होती है ना, बहुत सारी कॉस्ट होती है, आपने सेकंड में पढ़ा होगा बहुत सारी, या फिर फर्स्ट सेम में ही पढ़ा होगा कॉस्ट शीट में, सम कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो ये प्रोजेक्ट में ये सब लगता है कि क्यों, यूनिट वाइज डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है, फैक्ट्री में, यूनिट में, लीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, टेक्सटाइल में, तो वो डिपेंड करता है। और एज पर उसी के हिसाब से आपको रिफाइनिंग करना पड़ता है, उसका एस्टिमेटिंग बजट प्रिपेयर करना होता है। और उसके लिए जो भी कॉन्टिजेंसी फंड लगता है ना, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए और प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट प्लान, डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट नेटवर्क, एंड व्हाट वी से कंस्ट्रक्ट अ प्रोजेक्ट नेटवर्क। जो भी पीपल है, जो भी टीम है आपके साथ वर्किंग के लिए, उनको आपको क्या करना है, डेवलप करना है, उनके साथ काम करना है, ताकि आपका जो बैकलॉग है वो नहीं रहे। आपकी सारी कंसेप्ट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, इफ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट्स, मतलब जैसे आपके पास टीम वर्क है, कोई बंदे का कुछ हो जाता है तो आपके पास उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होना चाहिए, है ना। सो using the forward and backward pass informations, okay, your communication is to be very clear कि whatever the ऐसे नहीं कि गलती हो गई तो बोलना ही नहीं है। बहुत सारे लोग वो क्या होता है कि जैसे अगर कुछ भी हो जाता है तो वो बोलते नहीं है, या फिर वो कुछ बताते नहीं है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से इंफॉर्मेशन सही पे या टाइम पे नहीं जा पाती है, और अगर इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं जाएगी तो व्हाट हैपेंड, काम नहीं होगा, बॉस को पता ही नहीं चलेगा आपने क्या इसके पीछे लॉजिक लगाया है। ठीक है, तो लॉजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट रोल अप करने के लिए, प्रोजेक्ट को कंटिन्यू लाइफ साइकिल हमने देखा ना प्रोजेक्ट का, कंसेप्चुअल वगैरह। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट। कभी कभी प्रोसेस ब्रेकडाउन हो सकती है, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, तो इट्स ओके, नो इशू, बट काम स्टॉप नहीं होना चाहिए। हमारा जो वर्क है वो क्या नहीं होना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, वर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। इफ यू फील लाइक दैट कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको इससे भी अच्छा परफॉर्म करना है, तो you need to learn lot and lot of things regarding that particular project. Okay, so this is our second unit. It's a planning, project planning. Okay, so anyone want to ask any question? कोई भी क्वेश्चन पूछिए। यस, किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? Good. 1 second. We'll just study in case study. Okay. We'll study in case. Wait a minute. I will share it. Read case study. Yes. So चलिए मैं आपको एक ऐसा ओरली बताती हूँ कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का ये लेते हैं प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट होता है ना, तो सबसे पहले अगर हमें कोई प्रोजेक्ट या कोई काम स्टार्ट करना है तो क्या चाहिए हमें, बताइए। व्हाट इट्स रिक्वायर?
कम ऑन कैपिटल जी, यस, क्या चाहिए? कैपिटल अच्छा, और कैपिटल तो लगेगा सबसे पहले। मनी मतलब इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट, सो मतलब आपको अभी प्रोजेक्ट क्या है ना एग्जैक्ट में समझ में आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? मान लीजिए आप में से किसी ने सोचा कि मुझे एक आइसक्रीम पार्लर करना है या एक कैफे, और आप नोट डाउन करिए, आप सबको एक प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे वो प्रोजेक्ट की पीपीटीज चाहिए, ठीक है? इट्स अ वर्क, नेक्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए। एवरीवन नीड टू बी प्रिपेयर अ स्मार्ट प्रोजेक्ट पीपीटी विथ एवरीथिंग। उसमें शीट्स आने चाहिए, आपका कैश फ्लो आना चाहिए, उसका बजट आना चाहिए, एवरीथिंग। हाँ, और बोलिए कैपिटल, और बोलिए बोलिए, कम ऑन बोलिए, क्या चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए? यस प्रतीक्षा, जयश्री, डोंट हैव एन आइडिया? शॉप शॉप चाहिए उसके लिए आप। हाँ हाँ, यस, और यस, कम ऑन इंटरैक्टिव। देखो, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ना, काफी इंटरैक्टिव ये है। जब तक आप बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, क्या उसमें देना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, बताइए। मैम बिजनेस ये प्लान आपको, करना है, मार्केट का रिसर्च यस, भी करना पड़ेगा, यस, यस, देन फंड रेज करना देन, पड़ेगा, और लोकेशन, हाँ, बिजनेस का सुपर, यस, स्ट्रक्चर, यस, तो और बिजनेस रजिस्टर भी करना पड़ेगा। यस। और सबसे पहले तो देखिए, प्रोजेक्ट, कोई भी अगर प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना है, जीरो से भी अगर आपको स्टार्ट करना है, मतलब नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या लगेगी? लैंड, है ना, नया है, या तो प्लेस लगेंगी। सबसे पहले तो हमें क्या लगेंगी? प्लेस लगेंगी, जहां पे हम अपना स्टार्ट कर सके, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, राइट? उसके बाद हमें क्या लगेगा? कैपिटल लगेगा, फाइनेंस, है ना भाई? ये आ गया, जगह आ गया अभी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कि ये एरिया में सबसे पहले तो सर्चिंग, सबसे पहले क्या होता है? रिसर्च, कि हमें सर्च करना है कि जगह कौन सी है, कहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है, राइट? सो ऑन दैट बेसिस पे हमें लैंड देखना है। फिर लैंड देखने के बाद हमारे पास कैपिटल है कि नहीं, हम जो भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं उसका एक एस्टिमेट आपको तैयार करना है ना? जैसे मैंने आपको बोला है कि आपका ये होमवर्क है कि मान लीजिए किसी ने कैफे का बना दिया है, किसी ने कुछ बना दिया, तो मुझे उसका डिजाइन बना के दीजिए। बनाना है आपको अपने अपने प्रोजेक्ट का, कि सबसे पहले तो आपने प्रोजेक्ट टाइटल डालेंगे, प्रोजेक्ट ऑफ पार्लर, आइसक्रीम पार्लर, प्रोजेक्ट ऑफ नेट कैफे, प्रोजेक्ट ऑफ क्या बनाएंगे आप? बहुत सारे हैं, ड्रेस डिजाइनिंग का, शॉप्स, उसके लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा आपका, आपके पास कितना फाइनेंस अवेलेबल है, और उसमें सारी चीजें इंक्लूड करना है। आपका शॉप अगर ओन है तो, अगर रेंट पे है तो उसका रेंट कितना जा रहा है मंथली, एवरीथिंग। यू जस्ट, हमने इतने सारे फॉर्मेट देखे, उस फॉर्मेट में आपको प्रिपेयर करना है, और वो सारे फॉर्मेट पावर पॉइंट में ऐड करके फिर उसे प्रेजेंट करना है। 10 to 15 में बहुत अच्छा बनता है। जैसे अगर आपने नेट कैफे का लिया तो नेट कैफे के लिए फाइनेंस हो गया, फिर फर्नीचर देना पड़ेगा आपको, है ना? उसका आर्किटेक्ट बनाना पड़ेगा कि कौन से वे से हमें वो सारी चीजें लेनी है, कितना टेबल लगाना है, कितना चेयर लगाना है ना? उसका वो सारी, फिर मटेरियल क्या क्या लगेगा आइसक्रीम पार्लर के लिए, कौन सी चीज, कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी वी नीड टू यूज टू स्टार्ट योर पार्लर, ओके? तो उसके लिए आपका कितना खर्चा आया, कितना प्रॉफिट में है, लोकेशन कहाँ है, गॉट इट? तो ऑन दैट बेसिस पे यू नीड टू मेक अ प्रोजेक्ट। पार्लर का है आपका, अगर लेडीज पार्लर है तो लेडीज पार्लर का भी शॉप्स है, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे,
राइट, कौन सी चीजें आपको फॉलो करनी है, क्या प्लानिंग होगा, है ना। और वो एक आपका हो गया, उसमें भी आप बनाइए उसका प्रोजेक्ट, उसका बजट बनाइए, प्री बजट बनाइए, उसका प्लानिंग करिए। देन आपका अगर वेजिटेबल्स का है, दैट इज ऑल्सो गुड बिजनेस। क्या क्या लगेंगे, किसी जगह है, अगर आप स्ट्रीट पे कर रहे हो तो वहां पे तो आपको रेंट पे ही नहीं करना है। तो अगर अर्ली मॉर्निंग गए तो 2-3 घंटे का वो भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, है ना। उसका भी बजट तैयार करना है, वो तो जीरो से स्टार्ट होता है। 500 रुपए की सब्जी ले ली और उसमें 600-700 कमा लिए तो बहुत है, राइट। सो इट हैपन कभी कभी उसमें पेरिशिंग फूड्स के वजह से, क्योंकि वेजिटेबल इज अ वेरी डेलिकेट ना, वो कभी भी हो जाता है। तो ये प्रोजेक्ट्स है, आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उसके शीट्स, उसका बजट, उसका कैश फ्लो, उसका वर्किंग एक्सपेंसेस, एवरीथिंग जो हमने ऑलरेडी देखा है। मैंने भी ऑलरेडी आपको शेयर किया है, सबसे पहले स्टार्टिंग में दिखाया था कि कैसे कैसे आपको कंपनीज के हिसाब से। लेकिन एक्सेल मस्ट, नो एक्सेल आप प्रोजेक्ट ही नहीं बनाओगे, बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि सारी चीजें उसी में मेंटेन करनी है। सो लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर हियर, you just try and make it fast, whatever any kind of project। हमने सारी प्रोजेक्ट की आउटलाइंस देखी है, प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेंगे, अगर रेंट पे है तो क्या, अगर आपका खुद का है तो क्या। तो ये सारी चीजें ऑल प्लान के साथ आपको करना है। ट्रेनिंग, क्लोजिंग, डेडलाइंस क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या करना है ना। तो ऑल अभी यहाँ पे एक मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, यहाँ पे एक, वेट अ मिनट। हैव यू सीन दिस? यस मैम। तो ट्रैकिंग प्रोजेक्ट टू कंप्लीशन, अभी हमने देखा था कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ट्रैक कैसे करना है ना। जैसे कोरियर वालों का सॉफ्टवेयर है कि कोई भी कोरियर अगर हमें पता करना है तो आपके ऑफिस में भी एक सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, आउटलुक होता है कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं। और जो आपका मैनेजमेंट होता है वो सब देखता रहता है कि क्या, तो वो कितना काम हुआ कंप्लीट। एसएपी में भी वैसा ही है, सारे रिपोर्ट जनरेट हो जाते हैं एवरी डे, अगर आपका डाटा फुलफिल है तो, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर हियर एंड दे ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट्स टू कंप्लीशन। गवर्नमेंट भी देखता रहता है, अगर आपके पास गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो दे जस्ट विजिट, सुपरवाइज एंड दे नो कि ये कब तक कंप्लीट होगा और कहाँ तक कंप्लीट होगा, तो डिपेंड करता है। देन ये देखिए, ये यहाँ पे जो बनाया है ना, टास्क नेम, ये इस तरह से आपको शीट्स बनानी है। अब प्रोसीजर्स कितना हुआ है, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, ड्यूरेशन कितना लगा है, स्टार्ट कब किया था, फिनिश कब किया था, ये ऐसी शीट्स होती है सारे। जहाँ पे भी आप जाएंगे कंपनीज में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, ऑफिसेस में, जहाँ पे बड़ा काम होता है, स्पेशली जिनका टर्नओवर करोड़ के ऊपर है, तो दैट काइंड ऑफ शीट्स दे मेंटेन एवरी डे। आपका इनकमिंग टाइम, आउटगोइंग टाइम, पीडब्ल्यू प्लान जो भी था, टास्क में वो 100% कंप्लीट हुआ, ड्यूरेशन कितना लगा, टाइम 40 और 61, मतलब 1.5 डे, मतलब 24 आवर्स का डे होता है, राइट। तो 40 डेज, सॉरी, यहाँ पे 40.61 डेज लगे हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और कब स्टार्ट किया था? 2017 में 3 तारीख को, या फिर 1 जनवरी को स्टार्ट किया था, या 1 मार्च को स्टार्ट किया था, और कंप्लीट कब हुआ है? 28/2 को, ठीक है। पूरे 2 मंथ्स लगे हैं, मतलब ऐसा समझ जाइए आप, 40 डेज। देन इनिशिएशन एंड प्लानिंग के लिए भी 100% फुलफिल हुआ है, लेकिन उसको 483 डेज लगे हैं। टाइमिंग आता है उसमें ना, क्योंकि अगर आप मशीन में रिकॉर्ड करते हो ना कब आए, तो उसमें बराबर टाइम आता है, मतलब टाइम, सेकेंड, मिनट्स, एवरीथिंग, तो वो सब दिखाएगा। ये रिपोर्ट जनरेट, एक्चुअली ये जो है ना, ये रिपोर्ट जनरेटेड है, मतलब ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट हुआ है सिस्टम से, वहां पे फीडिंग हुआ है, ये हाथ से नहीं हुआ, बनाया है, ऑटोमेटिकली सिस्टम से हुआ है, दिखने में ही आता है। तो क्योंकि हाथ से हम लोग इतना पंक्चुअल, इतना टाइम, इतना ये सब नहीं लिखते हैं, तो ये रिपोर्ट उससे आया। क्रिएट चार्टर एंड स्टेक होल्डर्स असेसमेंट 100% हुआ है, कितने दिन में हुआ है, डॉक्यूमेंट्स कितने दिन में वेरीफाई हुए हैं, क्या स्कोप था, क्या वर्क था,
राइट? ये सारी चीजें दी। मेंटेन की है ये सारी चीजें। तो ये ऐसे ही आपको भी एक प्रोजेक्ट बनाना है। हम लोग केस स्टडीज भी देखेंगे, लेकिन आज नहीं, ठीक है? इसके बाद पहले तो आप बनाइए, फिर मैं आपको केस स्टडीज। देखिए यहाँ पे पूरी टाइमिंग दिए हुए, कब क्या करना है, सारे प्लान्स, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, कब कब कंट्रोलिंग किया, कब कब एग्जीक्यूट किया, ठीक है? स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन कैसा है, ट्रेनिंग कौन सा दिया है, कब दिया है, कितने दिन का दिया है ना? अपकमिंग सेशंस कितने होने वाले हैं, देन लंच कितने से कितने बजे तक है, वो सारी सारी चीजें, क्लोजिंग कितने बजे हुआ है, एवरीथिंग। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टास्क बकेट क्या हुआ है, 100%, मंडेज, ये सारी चीजें, ठीक है? सो इसलिए आपको एक शेड्यूल बनाना होता है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स, और उसी को फॉलो करना होता है। फास्ट वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 5, वीक 6, क्योंकि बैक डे नेवर कम्स ना। आपका जो पास्ट है वो कम नहीं आएगा, आपका रिटर्न नहीं आएगा। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट वे। Okay, so this is the unit 2 which we have completed, but case studies is pending. But before start case study, you need to make your project. Okay, small project, short project you have prepare. किसी का कार शॉप होगा तो उसमें बनाइए कि उनको कितना लगा, क्या है। स्मॉल प्रोजेक्ट, सिर्फ गाड़ी वाड़ी के फोटो मत डालिए, एस्टिमेट बनाइए, एस्टिमेट बनाना आना चाहिए। और ये अभी आप सीखेंगे, आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे मॉडल्स बनाते हैं, कैसे डाटा के हिसाब से हमें डायग्राम्स, एक्सेल्स, चार्ट्स, हाउ वी डिजाइन इट। सो डिजाइनिंग इज इम्पोर्टेंट। एवरी फाइनेंस हो, कुछ भी हो, वो आना चाहिए। डाटा को आप कितने अच्छे से प्रेजेंट करोगे वो आना चाहिए। गॉट इट? एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस? Okay, so have a good day. Maybe tomorrow I think is a lecture, so we'll study case. Okay, but before that you just make a plan, और बोलना है, सब लोगों ने बनाइए प्लान प्रोजेक्ट का और डिस्कस करिए प्लीज। Okay, so have a good day Okay, ma'am. Thank you. to all of you. See you tomorrow. वो आपने पीपीटी शेयर नहीं किया। Yes, anyone want to ask any question? मैम वो तो चैप्टर का पीपीटी शेयर करने वाले थे।